Hello students, till now we had done 3 rules for the congruence of triangles. Today we will learn some more criteria or rules for congruence of triangles. Learning outcomes means after watching this video, you will be able to interpret some more criteria for congruence of triangles, and you will be also able to apply these criteria in order to prove the congruence of two given triangles. So the next congruence rule is SSS congruence rule, means side 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 congruence rule. What does it mean? If three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle, then two triangles are congruent. Means अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाती हैं तो हम कहेंगे बाय ट्रिपल एस रूल these two triangles are congruent. You can see in the given figure CA is equals to FD, AB is equals to DE, BC is equal to EF. All three sides of first triangle are equal to all three sides of another triangle. So by triple S rule, that is side 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 congruence rule, triangle CAB is congruent to triangle FDE. Next congruence rule is RHS congruence rule. R for right angle, H for hypotenuse, S for side, that is any side. Means if in two right triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle, then the two triangles are congruent. Means अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज और एनी साइड दोनों की आपस में इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्राइंगल्स बाय आरएचएस रूल क्या माने जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. यू कैन सी इन द गिवन फिगर both are right angle triangles. First one is right angle at C, second one is right angle at Q. Or you can see hypotenuse AB is equal to hypotenuse PR and the side CB is equals to side QR. So यहाँ पे देखिए hypotenuse और any side of one triangle are equal to hypotenuse and any side of other triangle PQR are equal. So by RHS rule, these two triangles will be equal. You will write it as triangle ACB is congruent to triangle PQR. So बेटा आज हमने दो congruence rules किए हैं. The first one is triple S and the second one is RHS. तो चलिए बेटा इन्हीं रूल्स के को अप्लाई करते हैं हम अपने क्वेश्चंस में इन एक्सरसाइज 7.3. So let's start exercise 7.3. Question 2 is AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. Triangle ABC which is isosceles. Isosceles means in which two sides are equal. AD उसका क्या है altitude. ABC triangle में कौन सी दो sides equal की बात की गई है in which AB equal to AC. Show that AD bisects BC and second part is AD bisects angle A. Beta in this question figure is not given,
सो ट्राइंगल एबीसी की बात की गई है, सो हम खुद ड्रॉ करते हैं। एबीसी हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया है विच इज आइसोसेलेस इन विच AB इज इक्वल टू AC। AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस। एल्टीट्यूड है मीन्स हाइट है, तो हम हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। AD इज द हाइट, AD is the height. If it is an altitude means it is 90 degree. AD is perpendicular to BC. So मुझे ये चीज शो करनी है, AD bisects BC। ये जो लाइन AD है ये BC को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीन्स मुझे ये शो करना है जितना BD है उतना ही CD है। नेक्स्ट AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AD लाइन सेगमेंट है ये पूरे एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहां मुझे ये चीज शो करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन। हमें क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. This is given. और क्या दिया हुआ है? AD is an altitude. अगर AD altitude है तो मीन्स AD क्या है? हाइट है, तो परपेंडिकुलर किसके होगा? BC के। टू प्रूव AD bisects BC। AD BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बिकॉज AD इज एल्टीट्यूड सो देयरफॉर इट इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना है? 90 डिग्री। सो आवर triangle ABC is divided into two right angle triangles. You can see ADB and ADC. These are two right angle triangles. So I start with in triangle ABD and triangle ACD. क्यों ले रही हूँ बेटा ये मैं दो triangles? क्योंकि मुझे शो करना है कि BD equal to DC. AD bisects BC प्रूव करना है, मीन्स मुझे क्या शो करना है? BD equal to DC. That is. So अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो BD equal to CD हो जाएगा। हमारा टारगेट फुलफिल है। सो आई स्टार्ट विथ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। चलिए अब इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। शो क्या चीजें इसमें दिख रही हैं हमें? इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को ही हमें इक्वल दिख रहे हैं। यस, फर्स्टली तो यही दिख रहा है हमें कि दोनों में ही ये 90 डिग्री है। दैट इज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। वाई दे आर इक्वल? ईच 90 डिग्री। हाँ जी, सेकेंड कंडीशन। यस, दिस लाइन AD ये दोनों की ही साइड है। इस ट्राइंगल की भी साइड बन रही है, इस ट्राइंगल की भी साइड बन रही है। जो दोनों में होती है हम उसका रीजन क्या देते हैं? यस, कॉमन। AD इक्वल टू AD कॉमन। थर्ड वन कंडीशन क्या दिख रही है हमें? जो हमें गिवन है। क्या गिवन है? AB इक्वल टू AC। AB इस ट्राइंगल का पार्ट है और AC इस ट्राइंगल का पार्ट है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये कैसी साइड्स है बेटा? हैव यू नोटिस्ड? ये राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यस, हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC। गिवन हम सिंपली AB इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है बेटा? देखो यहां पे हाइपोटेन्यूज H 90 डिग्री, वन एंगल R एंड एनी ऑफ द साइड कौन सी है? AD। सो अभी जो हमने क्राइटेरिया किया है तो वही अप्लाई हो रहा है बाय RHS। यस, बाय RHS रूल क्या मिला मुझे?
triangle ABD is congruent to triangle ACD. In this way we have proved these two triangles are congruent. अगर ये triangles congruent हो गए हैं, can I say BD equal to CD? Yes, obviously. BD इस triangle की side है, CD इस triangle की side है. अगर ये triangles congruent हो गए हैं तो corresponding parts भी क्या हो जाते हैं? Equal. So that is BD is equal to CD by CPCT. Here I have proved the first part. What is the second part? AD bisects angle A. अब ये देखिए AD जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. यहाँ मैं डॉट लगा रही हूँ कि these two angles are equal, ये मुझे शो करना है. अब मैं जब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर चुकी हूँ तो ऑब्वियसली ये भी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल. सो आई विल राइट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT. सो वी हैव देयरफॉर AD bisects angle A. Hence proved. Question 3 is two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC. इस triangle ABC के side AB, BC और median AM are respectively equal to the sides PQ, QR and median PN. What does it mean? कि इस ट्राइंगल की AB साइड किसके इक्वल दी हुई है? PQ के. और इस ट्राइंगल का BC किसके इक्वल दे रखा है? QR के. और इसका मीडियन AM उस ट्राइंगल के मीडियन PN के इक्वल दिया हुआ है. What we have to show? Triangle ABM is congruent to triangle PQN. This ABM, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेफ्ट साइड, इधर के छोटे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट शो करना है. और सेकेंडली ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR. ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है, मुझे ये भी शो करना है. सो चलिए गिवन से स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या है. हमें जो चीज गिवन है पहले वो लिखिए. AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल टू QR and AM is equal to PN. This is given. What we have to prove? Triangle ABM is congruent to triangle PQN. बेटा ये given to prove जरूर लिखने हैं ताकि हमारे माइंड में क्लियर हो कि हमें दिया क्या हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है. सो इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट. वही दो ट्राइंगल्स लेकर चलते हैं. ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN. चलिए देखिए अब क्या क्या गिवन है. हमें क्या दिया हुआ था? AB किसके इक्वल है? PQ के. सो राइट डाउन AB इज इक्वल्स टू PQ. दिस इज गिवन. और क्या दिया हुआ है? AM इक्वल टू PN. दिस इज ऑल्सो गिवन. मीडियन दोनों के इक्वल है. थर्ड कंडीशन हमें क्या है हमारे पास? ये पूरा BC किसके इक्वल है? QR के. बिकॉज AM इज मीडियन सो मीन्स इट डिवाइड्स BC इंटू टू इक्वल पार्ट्स. अगर BC QR के इक्वल है, कैन आई राइट BM इक्वल टू QN? लेट्स सी हाउ. BM इज इक्वल टू QN. Why? Because BC is equal to QR. BC QR के इक्वल हमें दिया हुआ है. This implies half of BC equal to half of QR. Half of BC क्या रह जाएगा? BM. Why BM? Because AM is the median. जो median होता है वो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट करता है. In the same way, PN is median, so it means it divides QR into two equal parts. So can I write BC, half of BC is BM
and half of QR is Q1. In this way BM is equal to QN. So इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स ही दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो गए. सो बाय विच रूल? बाय SSS rule, triangle ABM is congruent to triangle PQN. Let's prove the second part. Second part is triangle ABC is congruent to triangle PQR. अब मुझे ABC को PQR के congruent शो करना है. So जिन दो ट्राइंगल्स को congruent शो करना है वही दो ट्राइंगल्स लेकर चलें. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. चलिए बेटा आप ढूंढते हैं कौन कौन सी चीजें हमें इक्वल दे रखी हैं और हमें दिख रहे हैं. So clearly AB is equals to PQ. Why they are equal? Yes, given. और क्या दिया हुआ है हमें? BC इक्वल टू QR. इस ट्राइंगल की साइड BC दूसरे ट्राइंगल की साइड QR के इक्वल, ये भी हमें गिवन है. दो कंडीशंस तो मिल गई. तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन में तो नहीं है, राइट? Here it is not given AC equal to PR. So यहाँ पे तीसरी कंडीशन बेटा हम क्या यूज करेंगे? एंगल B is equal to angle Q. Why angle B is equals to angle Q? Yes, because देखिए ये दो छोटे वाले ट्राइंगल्स को मैं क्या शो कर चुकी हूँ? These are congruent. अगर ये congruent हो चुके हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल. तो B को कॉरेस्पॉन्ड कौन कर रहा है दूसरे ट्राइंगल में? Q. तो कैन आई राइट एंगल B इक्वल टू एंगल Q? Yes, of course. Because triangle ABM is congruent to triangle PQN. ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है. Therefore, angle B is equal to angle Q. Why they are equal? By CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal. So यहाँ पे मुझे ये इस ट्राइंगल का ये एंगल B किसके इक्वल हो गया? इस ट्राइंगल के एंगल Q के. So तीन कंडीशंस मिल गई. कौन कौन सी? S साइड. दिस इंक्लूडेड एंगल A and this is side. ये दो साइड्स के बीच वाला एंगल. इट मीन्स कौन सा रूल अप्लाई हुआ? बाय SAS रूल. क्या मिला मुझे? ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR. Hence proved. Thank you.